A very good morning to all of you. So yesterday we have started our first chapter of macroeconomics, that is circular flow of income, right? In the chapter, we have discussed the basic concept of circular flow of income. Here in front of you on the screen, you can see this was the cycle of flow of income. Phase number 1, production phase, phase number 2, distribution phase, and phase number 3, disposition phase. Then after we have discussed this meaning of circular flow of income, just go through the definition, and in case you are having any doubt, you can ask me. What was it? I'm just rereading the definition for you. Circular flow of income refers to cycle of generation of income, right? It is basically the cycle in which income is generated in the production process. Then after, the income is distributed among the factors of production. And finally, again, it's circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. We have already covered this topic. Then we have discussed that there are basically 5 determinants of any economy: the household, firm, financial institution, government and foreign sector. और अगर हम इनको कैटेगराइज करें ओनली सेक्टर्स में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हट जाएगा और ये 4 बनेंगे किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स: हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Then after we have discussed about these sectors in detail. Yesterday we have ended our class on this topic, stock and flow. We were discussing about stock and flow variables, right? Now, what is stock variable? Any variable which is discussed for a period or which is studied for a point of time, right? We measure this variable for a point of time. You were supposed to highlight this. And flow variables are measured for a period of time. जिसके साथ एक ड्यूरेशन लग गया कि 1 मंथ की बात हुई है, 1 वीक की बात हुई है, उसको तो हम कहेंगे फ्लो वेरिएबल. और जिसके साथ कोई ड्यूरेशन नहीं लगा है, जो अभी इमीडिएटली है, वो है स्टॉक वेरिएबल. सो आई गेस वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट. स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, यानी इसके साथ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं जुड़ा. बट फ्लो में एक टाइम डायमेंशन है, यानी इसके साथ एक टाइम ड्यूरेशन ऐड हो रखा है. स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है. स्टैटिक यानी ये फिक्स हो गया है, और फ्लो डायनामिक कंसेप्ट है, चेंज होता रहेगा. अब स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वेल्थ, एक नेशन की कितनी वेल्थ है, तो वेल्थ को हमेशा मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर डेट पे. आज अभी मेरे पास कितनी वेल्थ है, हो सकता है कल इतनी ना रहे, पर आज कितनी है. वाटर इन अ टैंक, अभी आपके घर के वाटर टैंक में कितना पानी है, अभी आपके पास कितनी इन्वेंट्रीज है, या आज मेरी कितनी कैपिटल है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक. अगर मैं फ्लो की बात करूं, इनकम, आप देखिए इनकम हमेशा एक ड्यूरेशन की होगी. मेरी 1 मंथ की इनकम इतनी है, आज मेरी इनकम इतनी है नहीं कहेंगे, मेरी अभी इनकम इतनी चल रही है, राइट. वाटर इन द स्ट्रीम, कितना पानी बह रहा है. चेंज इन इन्वेंट्री, मेरे स्टॉक में मैंने कितने चेंजेस किए, या मेरी कैपिटल में मैंने कितना चेंजेस किया. नाउ हैव अ लुक. For better explanation of topic, you can just look at the image on your screen. क्या शो कर रही है ये इमेज, कौन बताएगा. आप मुझे ये वाटर टैप वाली एक्सप्लेन कर दीजिए. ये मैं कर दूंगी because this is technical in nature. So I will be explaining that part. I want the explanation of this water tap from your side. देखिए और समझाने की कोशिश कीजिए. Raise your hands for explanation. Be quick. Yes, Piyush. Piyush, beta, you are unmuted from my side. Give the answer. Okay, I guess there is some audio problem. Yes, Anjali. Good morning.
मैम बेसिकली ये फिगर ये शो कर रहा है कि जो ग्लास में वाटर है वो स्टोर हो गया है। अभी हमारे पास इतना वाटर है, इसका टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है इसके अंदर। हमारे पास ऑलरेडी इतना वाटर स्टोर है, ये तो हो गया स्टॉक। और जो नल से पानी आ रहा है वो हो गया फ्लो। मतलब इसमें कि पानी लगातार आ रहा है, इसका पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 5 मिनट से या 6 मिनट से ऐसे। तो ये बिल्कुल अपन रोक उसको रोक के नहीं रखा, वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा करेक्ट है। वन. दिस इज इट। The water in this glass is basically a stock of water, right? इतना स्टॉक हमारे पास है और इसमें जो एडिशन हो रहा है या इसमें से जो पानी बह जाएगा वो फ्लो है. मूव हो रहा है, जो चीज मूव हो रही है वो फ्लो है, राइट? अब इसमें से हो सकता है 1 मिनट में थोड़ा सा पानी गिर जाए, आप इसको टैप को 4 मिनट ओपन रखो तो हो सकता है फ्लो थोड़ा सा अलग हो जाए, राइट? तो जो मूवमेंट हो रहा है टाइम के साथ दैट इज फ्लो, और जो एक पास एक जगह पे रुक गया है दैट इज स्टॉक. ये स्टॉक अभी इतना है, हो सकता है इसमें फ्लो और होता जाए तो ये स्टॉक इंक्रीज भी हो जाएगा और डिक्रीज भी हो जाएगा. नाउ हैव अ लुक, इसकी बात करते हैं. मेरे पास मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल है? टू 2021 मेरे पास 4 मशीनरी अवेलेबल थी, तो ये था स्टॉक. फिर मैंने जनवरी के मंथ में 2 न्यू मशीनरीज परचेज कर ली, तो ये जो 2 परचेज की है ये फ्लो है. ये मैंने जनवरी के मंथ में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी फ्लो है, ठीक है. बट अब मैं बात करूं कि इस न्यू फ्लो की वजह से 2 मशीनरी की वजह से मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक हो गया है 4 + 2 दैट इज 6. इट मीन्स यहाँ हमें एक नई बात सीखने को मिल रही है दैट फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक. फ्लो की वजह से स्टॉक चेंज होता है, फ्लो की वजह से स्टॉक में इफेक्ट पड़ता है. अब आगे देखिए, अगर एकदम शॉर्ट में बात करें तो वापस सेम थिंग इज रिटन फॉर यू. स्टॉक मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, स्टॉक मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये पीरियड और पॉइंट का डिफरेंस है. फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, देखिए कि क्या आपको ये एग्जांपल समझ आ रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी, तो प्रॉफिट कभी भी एक पॉइंट का नहीं होता है, प्रॉफिट होता है एक पीरियड ऑफ टाइम का. मेरा इस साल का प्रॉफिट इतना है, राइट? मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ फ्लो वेरिएबल. क्यों फ्लो वेरिएबल? क्योंकि हमने इसको मेजर किया है एक पीरियड ऑफ टाइम पे. नेक्स्ट देखिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. हमारी पूरे साल की बर्थ रेट होती है, राइट? इंडियन इको में आपने पढ़ा है ना, सेंसस. तो पूरे साल में कितने बर्थ हुए वो बर्थ रेट है. साल भर की क्या डेथ रेट है वो वैसे मेजर होती है. तो ड्यूरेशन आ गया, दैट्स व्हाई फ्लो कंसेप्ट. इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, मंथली इनकम की बात करते हैं तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट. अब देखिए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. बैलेंस शीट हमेशा बताती है कि ईयर के एंड में कंपनी के पास कितनी चीजें. कॉमर्स वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, बैलेंस शीट में लिखा हुआ होता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, राइट? यानी इस डेट पे मेरे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, मेरी कितनी कैपिटल है. तो बैलेंस शीट हो गया स्टॉक वेरिएबल. कंट्री की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट के लिए होती है, इस डेट पे इतनी पॉपुलेशन है, कल की बात करोगे तो बदल जाएगी, आज कितनी है उसकी बात की जाती है हमेशा, राइट? सो स्टॉक कंसेप्ट. वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पास आज कितनी वेल्थ है, ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है. आगे देखिए, इसको आपको हाईलाइट करना है. चेंज इन स्टॉक वेरिएबल अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन फ्लो वेरिएबल. स्टॉक में चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? फ्लो की वजह से आते हैं. अगर मेरे पास आज एसेट है 10 करोड़ की, मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मेरी एसेट चेंज हो गई होगी, यानी मेरे फ्लो से मेरी स्टॉक पे इन्फ्लुएंस पड़ता है. कुछ एग्जांपल्स दिए गए, रीड बाय योरसेल्फ. अगर आपको डाउट आ रहा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल क्यों स्टॉक है या क्यों फ्लो है, तो आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. रीड द एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ.
ये एमसीक्यूज में आते हैं। 4 कंसेप्ट दिए हुए होते हैं और आपको लिखा हुआ होता है आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल या आइडेंटिफाई द फ्लो वेरिएबल। देखिए सबसे पहले कैपिटल, हमेशा एक डेट की, फिक्स डेट की कि इस पॉइंट पे मेरे पास इतनी कैपिटल है, तो स्टॉक वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट हमेशा ड्यूरेशन का होता है, मैंने इस ईयर में इतना इन्वेस्टमेंट किया, राइट, इसलिए फ्लो वेरिएबल। वेल्थ, मेरे पास आज कितनी वेल्थ है, लेकिन इनकम मेरी मंथ की होगी। प्राइस इंडेक्स, आज अलग अलग चीजों की कितनी प्राइस है, और इन्फ्लेशन के एक दिन में रेट इतनी इंक्रीज हो गई है या 1 मंथ में प्राइसेस इतनी इंक्रीज हो गई है। बैलेंस शीट सारी चीजें करंट पॉइंट की बताता है, बट P&L अकाउंट साल भर की चीजें बताता है। एक साल में इतना प्रॉफिट हुआ, एक साल में इतने एक्सपेंस हुए। फॉरेक्स रिजर्व, मेरे पास आज की डेट में कितनी फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट, वेजेस और टैक्सेस, मैंने साल भर में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना वेजेस दिया, कितना टैक्सेस दिया। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, आज मेरी इकोनॉमी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। जीडीपी, एक साल में मेरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ। So these are some examples of stock and flow. I hope the concept is clear to all of you. अब देखिए ये तो कंप्लीट है पार्ट, हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टॉक और फ्लो कंप्लीट कर लिया है, राइट। आपकी बुक में डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो गिवन है, गो विद इट बाय योरसेल्फ, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैव अ लुक। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट की गई है आपके लिए, जैसे यहाँ पे हम 2 सेक्टर्स की बात करेंगे, हाउस होल्ड और फर्म। तो वापस आपके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं हाउस होल्ड के बारे में, ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से रिकॉल हो जाए, आपका एक रिवीजन हो जाए। यहाँ पे हाउस होल्ड की बात करते हैं। इट इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर देयर इनकम। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपनी इनकम को आगे प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर दे रिक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल वांट्स, इनको गुड्स और सर्विसेज चाहिए होगी। ये ओनर है सारे रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फिर इनके 2 काम है। नंबर 1, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे प्रोडक्शन फर्म को, और नंबर 2, ये कंज्यूमर के फॉर्म में काम करेंगे, राइट। अब देखिए फर्म की बात करते हैं। फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स बनाएगी सेलिंग पर्पस के लिए। इनका मोटिव रहेगा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ये रिसोर्सेज यूज करेंगे अलग अलग गुड्स को बनाने के लिए, जो रिसोर्सेज दिए किसने, हाउस होल्ड ने। देन ये गुड्स और सर्विसेज सेल करेंगे इनकम के बदले में। और 2 मेन फंक्शंस है, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाइंग देम इन मार्केट, एंड परचेजिंग द इनपुट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स फॉर यूजिंग देम, राइट। अब यहाँ पे इनपुट, रॉ मटेरियल वो हाउस होल्ड से नहीं खरीदेंगे, रॉ मटेरियल एंटरप्रीनियर से खरीदेंगे। बट क्योंकि एंटरप्रीनियर भी कोई ना कोई हाउस होल्ड ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। Yes, Anjali, you can unmute and ask your question. इसका थर्ड पॉइंट जो है, यूजिंग रिसोर्सेज carried by household, हाउसहोल्ड कैसे हुआ? Yes, हाउसहोल्ड ही लैंड देगा बेटा, द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर। ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, ये हाउस होल्ड में से ही बन के आते हैं। अब लेबर है, तो लेबर की स्किल इसने यूज की, तो लेबर ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई किसने किया होगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने। तो हाउस होल्ड हैज सप्लाइड ह्यूमन रिसोर्स व्हिच वाज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। इज इट ओके? ओके मैम। ओके, ऑल राइट। अब देखिए आगे एक सिंपल मूवमेंट की बात करते हैं। ये इस चैप्टर का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। इसको भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, लेकिन ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल है। वो जो कल हमने पढ़ा था वो तो फेजेस है, और ये सर्कुलर फ्लो का मॉडल है। अब देखिए ये मॉडल आपको क्या बता रहा है कि ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये कौन है, फर्म्स है। मूवमेंट देखिएगा आप। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये स्टेप नंबर 1 है। हाउस होल्ड से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए फर्म के पास।
ग्रॉस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर वापस उसका सर्कुलेशन हो गया फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस पे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। अगर आपको कल वाली डेफिनेशन याद है तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आगे देखिए, इसी को डिटेल में बताया हुआ है, सेम चीज दोबारा बताई हुई है, आप इसको एनालाइज कीजिए। कुछ न्यू चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से आपके एनालिसिस के लिए 2 मिनट्स है, एनालाइज कीजिए जो लिखा हुआ है इसमें। चलिए, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगेन द सेम थिंग, वही चीजें दोबारा बताई हुई है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो नीचे देखिए। ब्लू एरो अलग बात कर रहा है और रेड एरो अलग बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हाउस होल्ड से यहाँ गई फैक्टर सर्विसेज, इसको फैक्टर मार्केट भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, इसके अपोजिट में क्या हुआ? पेमेंट आ गया इनके पास, राइट। ये सेकंड फैक्ट, पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम किस फॉर्म में होगी? लेबर को वेजेस, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हुआ रेड एरो से यहां से यहां, और बदले में हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? इसका पेमेंट कर दिया फर्म को। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नया टॉपिक नीचे बन गया कि ये जो ब्लू एरो है, ये ब्लू एरो ये शो कर रहे हैं मनी फ्लो को, रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। आप देखिए फैक्टर इनकम का पेमेंट हो रहा है तो मनी के फॉर्म में होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जो हो रहा है वो मनी के फॉर्म में होगा, और रेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है, ये पहला रेड एरो भी गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रही है, सर्विसेज मूव हो रही है, राइट। लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी गुड्स मूव हो रहे हैं, तो ये फिजिकल फ्लो होता है, रियल फ्लो जिसे कहते हैं। अभी हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। टू सेक्टर मॉडल है ये, यानी दो ही सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। अब आगे देखिए, ये आपको मनी फ्लो के बारे में बता दिया। आप इसको ऑब्जर्व करें, फिर मैं मनी फ्लो की डेफिनेशन बोल रही हूँ। आप इसको ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, ट्राई टू रिलेट इट। मनी फ्लो refers to the flow of money between different sectors of an economy. Money flow refers to the flow of money between different sectors of an economy. क्या ये मनी का ही फ्लो है दो सेक्टर्स के बीच में? डेफिनेटली यस। फर्म से हाउस होल्ड तक मनी के फॉर्म में फैक्टर इनकम जा रही है, और हाउस होल्ड से फर्म तक मनी के फॉर्म में कंजप्शन एक्सपेंडिचर जा रहा है, राइट। So we can also write money flow is the flow of factor incomes from firm to household and the flow of consumption expenditure from households to firms. इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज नॉमिनल फ्लो। नाउ हैव अ लुक, रियल फ्लो की बात करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए और फिर बताइए कौन मुझे इसकी डेफिनेशन बता सकता है। रेज योर हैंड्स फॉर डेफिनेशन। Be quick, everyone. All of you should give it a try. Yes, Karthik will tell us. Yes, Karthik. मैम रियल फ्लो मैम रेफर करता है मैम वो Wait फैक्टर for a सर्विस। second. There is some disturbance back में, तो आपका आंसर मैं नहीं ले पाऊंगी. Right? Okay, Rahul will give the answer. Yes, beta.
मनी फ्लो का बताना है या रियल फ्लो का? रियल फ्लो बेटा। रियल फ्लो तो मैम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फ्लो को रेफर करता है। जैसे फैक्टर प्रोडक्ट होता है, लेबर, रेंट और ये सब हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाते हैं, और फर्म से जो प्रोडक्ट्स अपने हाउस होल्ड्स को अवेलेबल होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, wheat, flour, Yes, very everything good. processed. Yes, that's correct. We can say real flow is the flow of goods and services among different factors of different sectors of economy, right? इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को हम रियल फ्लो कहा करते हैं। इसका दूसरा नाम नोट कर लीजिए, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, वैसे मेन आपके चैप्टर का सारा कंटेंट कवर हो गया है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो यहाँ पे आपके लिए है। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। देखिए एक इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं, राइट? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन 4 सेक्टर्स के बेसिस पे इकोनॉमी होती है या तो ओपन और या फिर क्लोज। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी 4th सेक्टर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अ इकोनॉमी दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये केवल अपने आप में काम करती है, ना एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ना इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ना कोई कैपिटल फ्लो हो रहा है। इट मींस अगर इंडिया केवल इंडिया के अंदर अंदर ही एक्टिविटीज परफॉर्म करे, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करे, तो हम इंडिया को कहेंगे या क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड ओपन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच ट्रेड्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे 4th सेक्टर भी एक्टिवली वर्क करता है। एकदम सिंपल सा मीनिंग है, ओपन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच अलाउज ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, whereas closed economy is the economy in which there are no transactions with the rest of the world, right? Currently 100% closed economy तो कोई भी नहीं है, but yes we can take the example of Brazil। बहुत लिमिट्स में वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो क्लोज एग्जांपल है। मैंने टी लिख दिया है बाय मिस्टेक। तो ब्राजील इज अ क्लोज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज टू, राइट? 100% क्लोज्ड इकोनॉमी वो भी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तो होते ही है। ओपन इकोनॉमी तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी, इंडिया इज आल्सो ओपन इकोनॉमी। चाइना की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए। अब देखिए वापस ये डायग्राम आपका पिछली फाइल में भी था, राइट? अगर हम बात करें, ये 3 सेक्टर्स हैं, तो द इकोनॉमी विल बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर हम बात करें कि ये 4th सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो द इकोनॉमी विल बी ट्रीटेड एज ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड में भी 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल होता है, जिसमें केवल ये 2 काम कर रहे हो। सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म अगर है तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का 2 सेक्टर मॉडल होगा। और अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का 3 सेक्टर मॉडल रहेगा। तो यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में भी 2 अलग अलग मॉडल्स होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल। हमने जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा है वो पढ़ा है 2 सेक्टर मॉडल का, राइट? ये ओपन इकोनॉमी है जहां सब कुछ हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ बैरियर्स भी हैं, कुछ बॉर्डर्स भी है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, नो इंपोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट्स, नो एड्स, इट इज सेल्फ रिलायंट, सारा काम अपनी इकोनॉमी के अंदर होता है। इसको आइसोलेशनिस्ट कहा जाता है, अकेले रह के सब कुछ काम करना। और जो इकोनॉमीज क्लोज्ड इकोनॉमीज होती है, उनके लिए एक डिक्शनरी वर्ड है ऑटार्की। ये किसी नेशन का नाम नहीं है, ये वर्ड यूज होता है उन इकोनॉमीज के लिए जो इकोनॉमीज क्लोज्ड इकोनॉमीज है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज है, ठीक है? ऑटार्की इज द वर्ड। आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वर्ड भी मेंशन कर देते हैं तो आप समझिए कि एग्जामिनर आपसे काफी इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है। तो हमने क्लासरूम में बात की थी ना, दैट वी हैव टू मेक आवर नोटबुक डिफरेंट, वी हैव टू मेक आवर आंसर शीट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये वर्ड आप लिख लीजिएगा बुक में, autarky, the word used for economies that are performing the activities as closed economies, right? आगे देखिए, एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर 1 का,
It means after completing this topic, we will be completing our chapter number 1. हमारा national income का एक chapter हो जाएगा, the easiest chapter. And I hope आपको ये chapter अच्छे से learn भी हो गया होगा. कल की क्लास की beginning में I will be taking a oral test of this chapter. उससे पहले let's just complete our last topic, leakage and injection. इसमें भी मैं आपको ये theoretical part discuss करवाने से पहले एक image show करती हूँ, शायद आपको आइडिया हो जाएगा. जस्ट हैव अ लुक. लीकेज और इंजेक्शन का भी यहाँ पे एक इमेज शो है. लीकेज से आपको क्या पता चल रहा है? टैप है, उसमें से कुछ गिर रहा है, बह रहा है, तो ये लीकेज है. और इंजेक्शन तो हमारी बॉडी में लगता ही है. जैसे कोविड-19 का वैक्सीन जब हम लेने जाएंगे तो वैक्सीन से वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में क्या करेंगे, वो कुछ इंजेक्ट कर देंगे. राइट, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन होगा वैक्सीन का, कुछ डाल दिया जाएगा. अच्छा, अगर हम ब्लड चेकअप करवाने जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट अगर हमें करवानी है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में से ब्लड निकाला जाएगा. दैट विल बी लीकेज. तो लीकेज का क्या मतलब है? कुछ विड्रॉ कर लिया. इंजेक्शन का मतलब है कुछ आपने इंजेक्ट कर दिया, कुछ आपने ऐड कर दिया. तो अगर हम इकोनॉमी से इन चीजों को रिलेट करें तो इंजेक्शन और लीकेज क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. हैव अ लुक. लीकेज मींस विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो. फ्लो हो रहा था, आपने उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया, आपने कुछ निकाल दिया. When households and firms save a part of their income, it constitutes leakage. They may be in the form of saving, tax payments, and imports. Leakage reduce the flow of income. अब ये बहुत बड़ी बात कह दी है. ये कह रहे हैं अगर हाउसहोल्ड कुछ विड्रॉ कर लेता है अपनी इनकम में से, अगर वो सेविंग कर लेता है या अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है कुछ पैसा, तो ये इकोनॉमी में लीकेज है. लीकेज क्यों है ये अभी मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी. पहले फ्लो की, इसकी इंजेक्शन की बात करते हैं. इंजेक्शन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द फ्लो. फ्लो में आपने कुछ नई इनकम डाल दी. When households and firms borrow the saving, they constitute injection. जब कहीं से कुछ borrow किया और पैसा आगे लगाया तो ये इंजेक्शन होता है. इंजेक्शन increase the flow of income. इनकम का फ्लो इंक्रीज हो जाता है. Injections can take the form of investment, government spending and export. इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट, ये सब इंजेक्शन के एग्जांपल है. कैसे है अभी डिस्कस करते हैं. हैव अ लुक. यहीं पे इसको थोड़ा ब्रॉड कैटेगराइज करके मैं आपको बताती हूँ. हमने कल फेजेस डिस्कस किए थे, राइट. फेज 1 प्रोडक्शन फेज, फेज 2 इनकम फेज जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहा गया था, और फेज 3 में एक्सपेंडिचर हुआ था. अब देखिए, जनरली 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा हाउस होल्ड को मिल गया इनकम के फॉर्म में, और वही इनकम आगे हाउस होल्ड ने उसका एक्सपेंडिचर किया ताकि वो एक्सपेंडिचर वापस चला जाए प्रोड्यूसर के पास, राइट. अब हम बात करते हैं बाय चांस हाउस होल्ड ने जितनी इनकम रिसीव की उसमें से कुछ पार्ट उसने सेव कर लिया. आप देखिए, सपोज प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में 50,000 रुपीज की वैल्यू का. अब फर्म ने इस 50,000 को इनकम के फॉर्म में हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हाउस होल्ड ने इस 50,000 में से 5,000 सेव कर लिया. इट मींस उसने एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, 45,000 का, राइट. ये इनकम वापस एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कितनी गई होगी, ओनली 45,000. अगर इनकम का 5,000 सेव हो गया है तो ये सेविंग अगर हो गई तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर के पास कितना पैसा पहुंचेगा, इट विल बी 45,000 ओनली. यानी अगली बार उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी बिकॉज पीपल हैव सेव्ड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ लीकेज. यस अंजलि, यू कैन आस्क योर डाउट. यस अंजलि. मैम सेव कैसे करेंगे? सेव कैसे करेंगे बेटा, यहाँ तो फाइनेंशियल मार्केट नहीं लिया. अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा तो सेविंग नहीं होगी, बट अगर फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो हम क्या करेंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूट में वो पैसा सेव कर देंगे. बैंक्स में या जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है वहां उस मनी को सेव कर देंगे. इज इट ओके? मतलब हाँ, जो पैसा प्रोडक्शन
सपोज 50,000 का सेम फिगर, उसमें से जो 45,000 ₹5,000 सेव करिए, वो 5,000 रुपए बैंक में एज अकाउंट ऐसे सेव हुए हैं अगर फाइनेंशियल में देखें तो, और अगर हमने ऐसे अपनी नहीं तो सेविंग कैसे हुआ? बैंक में कर दी, बिल्कुल। अब देखिए यही सेविंग हमने कर लिया सेविंग, तो ये हो गया लीकेज। अब सपोज बैंक ने ये 5,000 रुपीज किसी को लोन के फॉर्म में दे दिए, उस इंडिविजुअल ने बोरो किया और इकोनॉमी में एक्सपेंस कर दिया, तो ये जो बोरोइंग होके इकोनॉमी में एक्सपेंस हुआ ये है इंजेक्शन। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी ना इससे, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज इंजेक्शन। इज इट ओके? यस मैम। ऑल राइट। देखिए ये वाइड कंसेप्ट है, थोड़ी और चीजें आपको आपकी बुक में मिलेगी। अभी सिंपल एग्जांपल दे रही, एक 2 सेक्टर मॉडल जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, वहां तो ना इंजेक्शन होगा ना लीकेज होगा। हम ये मान रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में ही सेविंग हो सकती है, ऑल्दो रियल लाइफ में हम अपने घरों में पर्सनली भी सेविंग करते हैं, राइट? बट मैक्रो लेवल पे हम ये मानते हैं कि पर्सनल सेविंग्स नहीं है। अब देखिए, अगर फाइनेंशियल सिस्टम आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएंगे, तो सेविंग तो हो जाएगा लीकेज, और अगर किसी ने उस सेविंग को बोरो करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेसमैन ने बैंक से बोरोइंग करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये होगा इंजेक्शन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से अगली बार ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, राइट? इसी तरीके से अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया यानी मार्केट में हमारा एक्सपेंस कम हो गया। इफ आई एम अर्निंग 40,000 और उसमें से मैं 4,000 का टैक्स पे कर रही हूँ, तो मेरी इनकम में से केवल 36,000 एक्सपेंडिचर बन के जाएगा। इट मीन्स 4,000 का लीकेज हो गया। बट वही टैक्स अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में इन एक्सपेंडिचर कर देती है इकोनॉमी में, जो टैक्स गवर्नमेंट ने रिसीव किया उससे गवर्नमेंट स्पेंड कर देती है उस पैसे को, तो ये हो जाएगा इंजेक्शन। यानी इंजेक्शन फ्यूचर में होने के लिए ही अभी लीकेज किया जाता है। लोग थोड़ा थोड़ा पूरे साल सेव करते हैं और दिवाली पे उसको उसको इंजेक्ट कर देते हैं वापस। दिवाली मंथ पे क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर कर देते हैं, राइट? इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, कोई फंक्शन ओकेजन फेस्टिवल आता है, कोई शादी आती है, तो उसमें इंजेक्शन कर देते हैं। तो लीकेज से ही इंजेक्शन होता है नेक्स्ट टाइम। आगे देखिए इंपोर्ट। अगर हमने कुछ गुड्स का इंपोर्ट कर लिया, इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ लीकेज। ये कब होगा? जब 4 सेक्टर मॉडल हो, ओपन इकोनॉमी हो। इंपोर्ट को लीकेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंपोर्ट होता है तो हमारी इकोनॉमी में अर्न हुई हुई इनकम किसी दूसरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जाती है। वो एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में नहीं हुआ तो उससे फ्यूचर प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाई वी ट्रीट इंपोर्ट एज अ लीकेज। एक बार रिपीट करती हूँ एग्जांपल के साथ। सपोज एक इंडियन ने अर्न किया 4 लाख रुपीज, इसमें से इसने 3.5 लाख का एक्सपेंडिचर तो इंडिया में ही किया, लेकिन 50,000 का कुछ इसने इंपोर्ट कर लिया अमेरिका से। तो ये 50,000 इंडिया के लिए लीकेज है, क्योंकि ये जो 50,000 का एक्सपेंडिचर उसने किया है, ये एक्सपेंस इंडियन प्रोड्यूसर्स के पास नहीं पहुंचा, ये अमाउंट पहुंच गया है अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के पास। नेक्स्ट टाइम ये 50,000 यूज होगा अमेरिकन के थ्रू, तो उनके लिए तो एक्सपोर्ट है। इफ वी हैव इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 50,000 तो अमेरिका के लिए ये एक्सपोर्ट है, और उनके लिए ये एक्सपोर्ट बन के आया इंजेक्शन, क्योंकि उनके पास इस बार 50,000 एक्स्ट्रा आए जो अगली बार वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे। तो इंपोर्ट तो है लीकेज और एक्सपोर्ट्स है इंजेक्शन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। चलिए, इन केस एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, आपका आज का टास्क रहेगा that you have to learn the complete chapter number 1। बुक से मुश्किल से 3 या 4 पेजेस का चैप्टर है। इंजेक्शन और लीकेज दिया हुआ है पावर बूस्टर में। पावर बूस्टर का लास्ट टॉपिक है इंजेक्शन और लीकेज, इसको वहां से पढ़ेंगे। जितने भी बुक में बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर से कर लेने हैं। देन ओनली यू कैन से दैट द चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम योर साइड। बहुत सारे डाउट्स आपको आ सकते हैं, उन डाउट्स को आप सर्कल करके रखना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Anyone, any question? Okay, then that's great. I'm ending the class over here. Just recall the topics and learn the chapter by yourself.